The lesson 3, including a story titled In the Kingdom of Fools, is flashing on the mobile phone screen before you. This story has been taken from the book Supplementary Reader for the students of class 9th. According to the theme of this story, it is rightly said, a wise enemy is better than a foolish friend. In the story, in the kingdom of fools, the foolish king and his foolish minister, instead of punishing the real culprit, try to punish the innocent people. At last, a wise guru comes to their rescue. He rids the people of the reign of fools. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happened to them? Now I try to make you understand in your mother tongue, Hindi. Dear students, in the kingdom of fools नामक कहानी में एक मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री वास्तविक अपराधी को दंड देने के बजाय निर्दोष व्यक्ति को दंड देने का प्रयास करते हैं। अंत में एक ज्ञानी गुरु पहुंचते हैं उनका उद्धार करने के लिए। वह गुरु मूर्खों के शासन के अधीन लोगों को मुक्ति दिलाता है मूर्ख राजा से। तो ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि मूर्ख दोस्त से होशियार दुश्मन अच्छे होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि मूर्ख लोग बड़े खतरनाक होते हैं, केवल ज्ञानी लोग ही उनको संभाल पाते हैं। और इस कहानी में मूर्ख लोग कौन हैं और उन मूर्खों का क्या होता है। In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. They didn't want to run things like other kings. So they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night, till their fields and run their businesses only after dark, and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told for fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day, a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and
went about its nightly business. मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों के दोनों बेवकूफ़ थे, इडियट्स थे, मूर्ख थे। वे अन्य राजाओं की तरह सारी बातों को नहीं चलने देना चाहते थे, नहीं चलाना चाहते थे। अन्य राजाओं की तरह शासन नहीं करना चाहते थे, कुछ और भिन्न तरह से शासन करना चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने दिन को रात में और रात को दिन में बदलने का निर्णय लिया। उन दोनों ने आदेश दिया कि हर आदमी को रात में जगना चाहिए, हर आदमी को रात्रि में जगा हुआ होना चाहिए, या और अपने खेतों को रात में ही जोतना चाहिए, और केवल अंधेरे होने के बाद ही अपने अपने धंधे चलाने चाहिए लोगों को या हर व्यक्ति को। और जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही सोने के लिए चले जाना चाहिए। वैसा व्यक्ति जो व्यक्ति अवज्ञा इस आदेश का करेगा उसे मृत्यु से दंडित किया जाएगा। तो मौत के भय से लोगों को जैसा कहा गया वैसा उन लोगों ने किया। राजा और मंत्री अपने इस योजना की सफलता पर काफ़ी खुश हुए। एक दिन गुरु और गुरु के शिष्य उस शहर में पहुँचे। यह एक बहुत ही सुंदर शहर था। और दिन के उजाले में वैसे कोई वहाँ नहीं था। उस शहर में जगा हुआ हर व्यक्ति सोया हुआ था, यहाँ तक कि एक चूहा भी नहीं हिल रहा था। चूहा भी सोया हुआ था और मवेशी भी, दिन के उजाले में मवेशी को भी सोना सिखला दिया गया था। तो विचित्र अजनबी को आश्चर्य हुआ, जिस आश्चर्य से उन दोनों ने अपने चारों तरफ देखा। शहर में घूमा, शाम तक घूमा और अचानक सारा शहर जाग उठा और रात्रि का काम करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, उस राज्य के लोगों ने। माने रात्रि का काम करने के लिए चल पड़े लोग। The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same. A single daddu, whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas. It cost a daddu. The Guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. दोनों आदमी तो भूखे थे, गुरु और शिष्य। अब दुकानें खुल चुकी थीं और वे दोनों कुछ राशन की दुकान पे राशन खरीदने गए। तो टू देयर एस्टॉनिशमेंट, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने पाया कि हर चीज़ की कीमत एक ही है, 1 रुपया, एक सिंगल लड्डू 1 रुपया। चाहे चावल की कोई माप हो, कोई मात्रा हो, या एक
केलों का एक गुच्छा हो या चावल का कोई मात्रा हो, 1 किलो हो या 1 क्विंटल हो या 1 पीस केला हो या केले का गुच्छा हो, हाँ, सब की कीमत 1 रुपये थी। गुरु और शिष्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने इस तरह की बातें कभी सुनी नहीं थी। तो वे उतने भोजन सारे खरीद सकते थे जितने वे चाहते 1 रुपये में। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be an idea for them to stay there. This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. The Guru said, they are all fools. This won't last very long, and you can't tell what they'll do to you next. जब उन दोनों ने खाना पकाया और खा लिया, तब गुरु ने महसूस किया कि यह मूर्खों का राज्य है और यहाँ ठहरना उन दोनों के लिए अच्छा आइडिया तो नहीं होगा, अच्छा विचार तो नहीं होगा। यह हम लोगों के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं है, तो हम लोग यहाँ से चलें। गुरु ने अपने शिष्य को कहा, लेकिन शिष्य उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते थे। हर चीज़ यहाँ सस्ती थी, वह सब जो वह चाहता था उन सबों में अच्छा और सस्ता भोजन था उसके लिए। तो गुरु ने कहा कि वे सब के सब मूर्ख हैं और यह ज़्यादा दिनों तक यह बात नहीं चलेगी। तुम ये भी नहीं कह सकते कि मूर्ख लोग अगले क्षण तुम्हारे साथ क्या करेंगे, इसकी भविष्यवाणी तुम नहीं कर सकते हो। But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, do what you want. I'm going, and left. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and Guru felt like a street-side sacred bull. लेकिन शिष्य गुरु की ज्ञान भरी बात की अनसुनी कर दी। सुनना नहीं सुनता था गुरु की ज्ञान भरी बात को। वह तो वहाँ ठहरना चाहता था, रहना चाहता था। आखिरकार गुरु ने उस स्थान को छोड़ते हुए कहा कि जो तुम चाहते हो करो, तुम रहना चाहते हो तो तुम यहीं रहो, मैं तो जा रहा हूँ। और स्थान को गुरु ने छोड़ दिया, उस शहर को गुरु ने छोड़ दिया। शिष्य वहीं रह गया और प्रतिदिन वह भरपेट खाना खाता था। केले, घी, चावल, गेहूँ, ये सब खूब खाता था। और वह शिष्य गली में घूमने वाले पवित्र सांड की तरह मोटा हो गया था। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in. As he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot.
His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a bull fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good, strong boat. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. एक दिन के उजाले में एक चोर एक धनी व्यापारी के घर में, एक रिच मर्चेंट के घर में सेंधमारी कर दी। उसने दीवार में एक छिद्र किया और उस छिद्र से उसने प्रवेश किया, और जब वह अपने लूट का माल ढोकर अंदर से ला रहा था, तभी उस पुराने घर की दीवार उसके माथे पर गिर गई और वह उसी स्थल पे चोर मर गया। यानी उस दीवार ने उस चोर को उसी जगह मार दिया। यानी चोर दीवार के गिरने से, सिर पर गिरने से वह चोर उसी स्थान पर मारा गया। अब उस चोर का भाई दौड़े दौड़े राजा के पास आया और शिकायत की कि सरकार, जब मेरा भाई अपना पुराना पेशा या धंधा कर रहा था, जो उसके भाई का पेशा क्या था? धंधा चोरी करना। तो उसके भाई ने कहा कि जब मेरा भाई पुराना धंधा कर रहा था तो एक दीवार उसके ऊपर गिर पड़ी और उस दीवार ने उसे जान से मार डाला। यानी वह दीवार के गिरने से वह मारा गया। अब इसका आरोप, इसका दोष तो उस व्यापारी पर लगना चाहिए। उसे अच्छी दीवार, मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। तो आपको गलत करने वाले को अवश्य दंडित करना चाहिए और उस मृतक के परिवार को इस अन्याय के लिए क्षतिपूर्ति आपको करना चाहिए। The king said, Justice will be done. Don't worry. And at once summoned the owner of the house. राजा ने कहा, न्याय किया जाएगा, चिंता मत करो। और तुरंत ही घर के स्वामी को उसने बुलवाया। When the merchant arrived, the king questioned him, What's your name? Such and such, your highness. Were you at home when the dead man burgled your house? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of a man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. Who is that? My lord, this wall was built in my father's time. I knew the man. He is an old man now. He lives nearby. The king sent out the messenger to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him, tied hand and foot. जब व्यापारी पहुंचा तो राजा ने उससे प्रश्न किया, तुम्हारा नाम क्या है? तो सच एंड सच सरकार। जब
मृतक ने तुम्हारे घर में सेंधमारी की तो क्या तुम उस वक्त घर पर थे? हाँ सरकार, हाँ महाराज। उसने सेंधमारी की और दीवार कमज़ोर थी, यह दीवार उसके ऊपर गिर गई। तो द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, आरोपी तुम पे दोष ठहराता है। तुम्हारी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई को जान से मार डाला। तुमने एक आदमी की हत्या कर दी है। हमें तुम्हें दंडित करना है। महाराज, बेचारा व्यापारी ने कहा, मैंने वह दीवार नहीं बनाई थी। यह तो उस आदमी का दोष है वास्तव में जिसने यह दीवार बनाई। उसने इस दीवार को सही नहीं बनाया। आपको तो उसे दंडित करना चाहिए। तो आखिर वो कौन है? महाराज, यह दीवार मेरे पिता के समय में बनाई गई थी और मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, वह नज़दीक में ही रहता है। तो राजा ने संवाददाताओं को उस राजमिस्त्री को लाने के लिए भेजा जिसने दीवार कमज़ोर बनाई थी। तो उन संवाददाताओं ने उसे हाथ पैर बांध कर लाया। You there? Did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You murdered him. We have to punish you by death. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your orders. It's true, I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. You are right. The case deepens. We must look into it. It is not easy to judge such a complicated cases. Let's get that dancer wherever she is. The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. तो राजा ने पूछा कि उसके फादर के टाइम में क्या तुमने इस आदमी के घर की दीवार बनाई थी? तो राजमिस्त्री ने कहा कि हाँ महाराज, मैंने ही वह दीवार बनाई थी। तो यह किस प्रकार की दीवार तुमने बनाई है? किस प्रकार की दीवार तुमने बनाई? यह दीवार तो उस बेचारे आदमी पर गिर गई है और उसे जान से मार डाला है। तुमने तो उसकी हत्या कर दी है। अब तुम्हें मौत की सज़ा हम लोगों को देनी है। तो फांसी का आदेश राजा के देने के पहले बेचारा राजमिस्त्री ने कहा कि अपना आदेश देने के पहले कृपया मेरी बात
सुनिए, यह सच है कि मैंने यह दीवार बनाई और यह दीवार अच्छी नहीं थी, लेकिन इसका कारण था कि मेरा मन इस दीवार को बनाने पर नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक नृत्य करने वाली लड़की जो उस गली से बार बार आती जाती थी सारा दिन अपने पायल के झनकार के साथ, तो मैं अपनी नज़र और अपना मन उस दीवार पर नहीं रख सका जिस दीवार को मैं बना रहा था। उस लड़की के पायल के झनकार ने मुझे आकर्षित कर दिया और उसने मेरे ध्यान को अलग कर दिया, अपनी तरफ खींच लिया। तो आपको तो उस लड़की को ढूंढना चाहिए। मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहती है। ओह, व्हाट यू से इज राइट। अच्छा, तो जो कहते हो वो तो सही है। मामला और गहरा होते जाता है। अब हम लोगों को इस मामले की जांच पड़ताल अच्छी तरह अवश्य करनी चाहिए और ऐसे जटिल मामलों का फैसला करना आसान बात नहीं है। तो हम लोग उस अब नृत्यांगना को यानी उस नर्तकी को अवश्य हम लोग ढूंढें जहाँ कहीं भी वो है। तो वह नर्तक लड़की जो एक बूढ़ी महिला वो चली थी और वह कांपते हुए दरबार में आई। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. So you did walk up and down with your ankles jingling. You were young and you distracted him. So he built a bad wall. It has fallen on a poor burglar and killed him. You killed an innocent man. You'll have to be punished. क्या तुम बहुत वर्ष पहले उस गली से बार बार आती जाती थी जब यह बेचारा राजमिस्त्री दीवार बना रहा था? तो क्या तुमने उसे देखा था? हाँ सरकार, हाँ महाराज, मुझे यह अच्छी तरह याद है। तो इसलिए बार बार तुम आती जाती थी अपने पायल के झंकार के साथ। तुम उस वक्त युवा थी और तुमने उसके ध्यान को आकृष्ट किया, उसके ध्यान को उसके काम से तुमने हटा दिया और अपनी तरफ आकृष्ट किया। उसके ध्यान को विकर्षित किया तुमने, जिसके कारण उसने खराब दीवार बनाई और यह दीवार उस बेचारे चंदमार छोड़कर गिर पड़ी है और उसे जान से मार डाला है इस दीवार ने। तो तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को जान से मार दिया है। तुम्हें तो अब दंडित किया जाना पड़ेगा। She thought for a minute and said, "My lord, wait. I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses. Said he would give it now and he would give it then and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's the damned goldsmith.
goldsmith's fault. Poor thing. She is absolutely right, told the king, weighing the evidence. We've got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. वह नर्तकी उस नर्तकी ने 1 मिनट सोचा और कहा कि महाराज ठहरिए, मैं अब जान चुकी हूँ कि मैं क्यों बार बार उस गली से आती जाती थी। मैंने अपने लिए आभूषण बनाने हेतु सुनार को कुछ सोने दिए थे। वह तो बहुत ही आलसी बदमाश था, पाजी था। वह इतने बहाने बनाता था और कहता था, बहुत सारे बहाने बनाता था और कहता था कि अब मैं दे दूँगा, तब मैं दे दूँगा, अब देता हूँ, तब देता हूँ। सारा दिन ऐसे ही कहता था और मुझे दर्जनों बार अपने घर पे बार बार वह बुलाता था। उसके बुलावे के कारण मैं बार बार आती जाती थी। और इसी समय यह राज मिस्त्री ने मुझे देख लिया, और यह मेरा दोष नहीं है महाराज, यह तो उस दुष्ट सुनार का दोष है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट। हाँ, वो यह तो लड़की बिल्कुल ठीक कहती है। राजा ने सोचा, उस वेइंग द एविडेंट, प्रमाण को तौलते हुए, साक्ष्य को तौलते हुए, परखते हुए, आखिरकार हमने वास्तविक अपराधी तक हम लोग अब आखिर ढूंढ ही लिया है, पा ही लिया है, खोज ही लिया है अपराधी को। गेट द गोल्डस्मिथ, उस सुनार को लाओ जहाँ कहीं भी वह छिपा हुआ है, तुरंत अभी लाओ। The king's bailiffs searched for the goldsmith, who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. राजा की सेनाएं, राजा के सिपाही ने उस सुनार की खोज की, जो सुनार अपनी दुकान के कोने में छिपा हुआ था। जब उसने अपने विरुद्ध आरोप सुना तो उसे बताने के लिए अपनी ही कहानी थी। My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true, I made this dancer come many times to my poor. I gave her a skills because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. They had a wedding coming, and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted the bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? तो सुनार ने कहा कि महाराज, मैं एक गरीब सुनार हूँ। यह सच है कि मैंने इस नर्तकी को अपने दरवाजे कई बार मैंने आने के लिए विवश किया, बुलवाया, और मैंने बहुत सारे बहाने बनाए, क्योंकि मैं उसके आभूषण को पूरा नहीं कर सकता था धनी व्यापारी के आदेश को पूरा करने के पहले।
और उस धनी व्यापारी के दे हैड अ वेडिंग कमिंग, और धनी व्यापारी के यहाँ एक आने वाला शादी का समारोह था, शादी थी उस धनी व्यापारी के घर में। तो धनी लोग तो इंतज़ार नहीं करेंगे ना, इंतज़ार तो नहीं करते हैं। आप तो जानते हैं कि धनी लोग कितने व्यग्र होते हैं, व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं। तो यह धनी व्यापारी कौन है जिसने उस बेचारी महिला के आभूषण को पूरा करने से तुम्हें दूर रखा, और उसने विवश किया इस महिला को बार बार आने के लिए, और इसके आना जाना, इस महिला नर्तकी के आना जाने से इस राजमिस्त्री के ध्यान को विकर्षित किया, हटाया काम से, और जिसके कारण जिसने कमज़ोर दीवार बनाई, ख़राब दीवार बनाई, और जो अब जिस दीवार ने, जो दीवार उस निर्दोष आदमी पर गिर चुकी है और उस आदमी को वह दीवार मार चुकी है, क्या उस व्यक्ति का नाम बता सकती हैं? The goldsmith named the merchant. Oh, sorry. ये राजा ने सुनार से पूछा तो सुनार ने कहा, क्या तुम उस व्यक्ति का नाम बता सकते हो? Then the goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle toward the king, back to the merchant. When he was duly summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He dead. I'm innocent." तो उस सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया, और वह कोई नहीं बल्कि घर का मूल मालिक था। मूल मालिक के अलावा कोई नहीं था। वह घर का ओरिजिनल ओनर था जिसकी दीवार गिर गई थी। अब न्याय तो एक पूरे सर्किल में घूम के आ गया, जहाँ से शुरू हुआ वहीं फिर यह बात आ गई। राजा ने सोचा, और यह न्याय तो वही व्यापारी से शुरू हुआ मामला, और वही इसी व्यापारी पर वापस यह मामला आ गया। तो जब उसे दरबार में बुलाया गया तो वो रोते हुए पहुंचा। वह धनी यह मैं नहीं बल्कि मेरे पिताजी थे जिन्होंने आभूषण का आदेश दिया था। वह तो मर चुके हैं, मैं तो निर्दोष हूँ। बट the king consulted his minister and ruled decisively. It's true, your father is a true murderer. He is dead. But somebody must be punished in his place. You inherited everything from that criminal father of yours, his riches, as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. लेकिन राजा ने अपने मंत्री से कंसल्ट किया, संपर्क किया, और निर्णायक ढंग से कहा कि यह सच है कि तुम्हारे पिताजी वास्तव में हत्यारे हैं, लेकिन वह मर चुके हैं।
लेकिन किसी को तो उनके जगह पर दंडित किया जाना होगा। और तुमने अपने अपराधी पिता से हर चीज़ विरासत में तुम्हें मिली है, उसकी संपत्ति मिली है, तो साथ साथ उनके पाप भी तो लेने चाहिए, पाप। और मैं तुरंत जान गया था जब मेरी पहली नज़र तुम पर पड़ी थी, ये जान गया था कि तुम ही इस भयंकर अपराध की जड़ में हो। अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा, अवश्य अब मरोगे तुम। And he ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servants sharpened the stake, got it ready for the final impaling of the criminal. It occurred the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. उसने नई शूली बनाने का आदेश दिया इस फांसी को तैयार किए जाने के लिए। चूँकि नौकर ने खूंटे को तेज किया था और तैयार किया, आखिर उस अपराधी को फाइनली सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार किया। तो इट अकर टू द मिनिस्टर दैट रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन। तो एक ये मिनिस्टर के बात ध्यान में यह बात आए कि धनी व्यापारी तो इतना दुबला पतला है कि वह शूली पर इसे फांसी भी सही रूप से नहीं दी जा सकती है। तो उसने राजा के ध्यान को, समझदारी को अपनी तरफ आकर्षित किया। उसने अपील किया, राजा से कहा, तो राजा को भी यह बात जची कि यह दुबला पतला है, इसको सही ढंग से फांसी भी नहीं दी जा सकती है। तो राजा भी बेचारे सोच में पड़ गए। What shall we do? He said. When suddenly it struck him that they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. तो राजा ने कहा कि अब हम लोग क्या करें। तभी अचानक उसे यह बात आई उसके दिमाग में कि वे लोग जिसे करने की ज़रूरत थी कि एक आदमी को ढूंढना था, मोटे आदमी को, जो इस शूली के लिए फिट हो। तो नौकर को तुरंत ही भेजा गया शहर में ढूंढने के लिए उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति इस शूली से फिट बैठता हो। तो उसकी नज़रें उस शिष्य पर पड़ गई। उन नौकरों की नज़रें उस शिष्य पर पड़ गई जो महीनों से केले, चावल, गेहूं से बने रोटियां और घी खाकर खुद मोटा हो गया था। What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi, he cried. That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's words, "This is a city of fools. You don't know what they will do next." While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far, and he could see the future as he
could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. तो शिष्य ने रोते हुए चिल्लाते हुए कहा कि मैंने कौन सी गलती की है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। हाँ, सच हो सकता है, लेकिन यह राजशाही राजा का आदेश है कि हमें शूली पर फिट बैठने के लिए एक मोटे व्यक्ति हमें ढूंढना है, और तुम ही मोटे व्यक्ति हो, लोगों ने कहा। और वे लोगों ने फांसी के स्थान पर उस शिष्य को लाया। तो उस शिष्य को अपने गुरु के वचन याद आए, यह तो मूर्खों का शहर है, तुम नहीं जान पाओगे कि ये मूर्ख लोग आगे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। जब वह मौत का इंतज़ार कर रहा था तो उसने अपने गुरु से अपने हृदय में मन ही मन उसने प्रार्थना की, यह कहते हुए सुनने के लिए कि जहाँ कहीं भी हो मेरी आवाज़ आप, मेरा क्रंदन आप, मेरी प्रार्थना आप सुने। गुरु अपनी दृष्टि से हर चीज़ को देखते थे और उनके पास जादुई शक्ति थी। वह दूर भी देख सकते थे, भविष्य भी देख सकते थे, और चूँकि वे वर्तमान भी देख सकते थे और भूत को भी देख सकते थे। तुरंत वे शिष्य को बचाने के लिए पहुंच गए, जो खुद भोजन के प्रेम के कारण इस ऐसी मुसीबत में फंस गया था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. And then he went to the king and addressed him, "O Majesty of King, who is greater, the Guru and the disciple?" Of course, the Guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to the stake first. Put my disciple to death after me. जो ही गुरु पहुंचा त्यों ही उन्होंने शिष्य को डांटा और कान में कुछ बातें हल्की आवाज़ में गुरु ने कही, अपनी योजना बतलाई उसके कान में। और तब वह राजा के पास गया और उसे संबोधित किया कि ओ राजा, सबसे ज्ञानी राजा, आप बताइए कि गुरु या शिष्य दोनों में से कौन महान है। तो अवश्य गुरु महान है, निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछते हैं? तब तो मुझे आप फांसी दीजिए, शूली दीजिए, और शिष्य को मेरे बाद आप मौत की सज़ा दें आप। Dear students, this video is getting long, so I drop it, and the rest of this chapter will be uploaded in the next video. Thanks.